We have with us today Santosh Kumar Yadav sir, an IAS officer of the 1995 batch, Uttar Pradesh cadre. Sir is currently posted as Additional Secretary in the Department of School Education and Literacy, Ministry of Education, Government of India. Sir holds a BTech degree from IIT Roorkee and an MTech degree from IIT Delhi. And in the course of his career, sir has served as DM in 6 different districts of UP. He has also served as Chairman, Ghaziabad Development Authority, CEO of Yamuna Expressway Authority, MD of Noida Metro Rail Corporation, and he has also served as Secretary of Women and Child Development Department and Industry and Infrastructure Department, Government of UP. In his current assignment as Additional Secretary in DSEL, sir is closely associated with the Samagra Shiksha and the implementation of the National Education Policy 2020. Today, he will be speaking to us about transforming school education through implementation of the new education policy. Sir, may I welcome you on behalf of all the participants. Good afternoon, friends. Privileged to be in the academy and very nostalgic also. I mean, in the morning we were with batchmates, we were traveling down, we were seeing कि कौन सी building नई आ गई, कौन सी चली गई. So much it takes you 25-27 years down the memory lanes. Whenever you will come, you will discuss among yourself कि यार पहले थे तो अब ये था, अब ये हो गया. So as I am speaking today, आज exactly 2 साल हो रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. It was launched 2020 this very day. So today I am going to speak, education universe, education की जो कायनात है 3 चीज़ों से बनती है. School, for the time being I am teacher, for the time being you are students. So NEP, today what I'll try, NEP को इन्हीं 3 segments में I'll divide and see what are the challenges and how to get over it. Or because you guys are, many of you I am seeing they are education secretaries who are present over here. Maybe in due course of time you will be education secretary of the states. If not, please take away from me, tell your education secretaries कि अगर education में बदलाव लाना है तो through NEP ये करना होगा हमें. So first is NEP schools. NEP schools means access to quality education in schools. So what I am trying to show, this is a girl, Mamta. Mamta is from very humble background. She is called Bruce Lee of Malkangiri in Odisha. She is from KGVB, Kasturba Gandhi Vidyalaya. You know this, it's a government school. It's a residential school. She had a passion for judo. She was awarded gold medal in 2019 in a state level judo competition. Then she was selected for national team. Again, ये 2 बच्चे हैं, गुरकीरत and गगनजोत. They are from government school पंजाब. इनका inclination था ICT में. So जो MIT ministry है, they run a program, scholarship program for national program for government schools on AIs. इन्होंने अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया एंड दे वर अमंग टॉप 20 विनर्स इन द कंट्री. एसेंशियली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए बच्चे को तो कहीं का भी बच्चा हो, दे एक्सेल. व्हाट NEP सेज कि एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन इज, अगर कंट्री को ग्लोबल स्टेज पर अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, यू हैव टू हैव क्वालिटी एजुकेशन. कंट्री के लोगों को अपने कल्चरल वैल्यूज़, इक्वलिटी, सोशल जस्टिस, आई मीन वॉट एवर इज इनसाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इस पे आना है तो यू विल हैव टू गिव क्वालिटी एजुकेशन. कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी हो जाएगा, नो इशूज. सो एज्यूमिंग, आई एम ट्राइंग टू पोर्ट्रे सिनेरियो, अगर 2016 में कंट्री में जितने स्कूल्स थे अगर उसको फिक्स मान लिया जाए, उसके बाद कोई स्कूल ना बना, कोई ब्रिक एंड मोर्टार स्कूल ना बनाया जाए. सो 2041, 20 ईयर्स डाउन द लाइन होगा क्या? पर मिलियन अवेलेबिलिटी ऑफ स्कूल्स जो इस समय 6000 है, ये बढ़कर 7500 हो जाएगी. यानी कि बिकॉज
जो 5 to 14 एज ग्रुप स्कूल गोइंग पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो गई, सी द रेड लाइन इज गोइंग टू डिक्लाइन। एसेंशियली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ब्रिक एंड मोर्टार में इन्वेस्ट करने की अब जरूरत बहुत ज़्यादा नहीं है। 2021 5 to 24 एज ग्रुप इज द पॉपुलेशन विच इज स्कूल एंड कॉलेज गोइंग। सो अगर आप इसका पिरामिड देखें तो जो 5 to 24 एज ग्रुप में पिरामिड हैज मैक्सिमम पॉपुलेशन। 15 ईयर डाउन द लाइन क्या होगा? सी दिस विल शिफ्ट, दिस पिरामिड विल शिफ्ट टू 20 to 44 एज ग्रुप, यानी कि स्कूल गोइंग एज ग्रुप से ऊपर हो जाएगा वो। सो व्हाट आर द चैलेंजेस? चैलेंजेस टू क्वालिटी एजुकेशन के चैलेंजेस क्या है? यू नो ये ग्लोबली इन द कंट्री एजुकेशन की क्वालिटी नापी कैसे जाती है? देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स, दे आर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो 4 to 23 एज ग्रुप की स्कूलिंग के बारे में से डिफाइन होता है। यू नो दीज ऑल इंडिकेटर्स, बी SDI, बीट GR सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, बीट ड्रॉप आउट रेट, बीट आई मीन दे आर ऑल कंपेरेबल टू व्हाट इज ग्लोबली। दुनिया के स्टैंडर्ड से अगर आप मिलाओ तो दे आर एट द नेशनल लेवल दे आर वेरी गुड। प्रॉब्लम कहाँ है? सी HDI कंट्री का 0.56 है, वेरी गुड, बट इसका वेरिएशन देखें। सी 0.8 चंडीगढ़, बिहार, जो पॉपुलर स्टेट है वहाँ जहाँ वहाँ के इंडिकेटर्स एकदम पुअर हैं। PTR प्राइमरी स्कूल में 26 है नेशनली, कंट्री के हिसाब से 30 है, होना चाहिए बेटर देन व्हाट एंड इन राइट टू एजुकेशन एक्ट। बट सी बिहार 57, सिक्किम 7, सी ड्रॉप आउट रेट नेशनली 0.8, सी मणिपुर 8.6। सो व्हाट इज नीडेड? जरूरत क्या है? चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि जो स्टेट्स हैं, जो स्टेट्स लैगार्ड हैं, जो पॉपुलर स्टेट हैं, जहाँ ज़्यादा किड्स हैं, वहाँ पर ज़रूरत है। आई कम कि ये इसको इम्प्रूव कैसे करना है। सी एजुकेशन की क्वालिटी तभी आएगी जब फाउंडेशन मजबूत हो, विच मीन्स सी 3 to 9 एज ग्रुप की जो पॉपुलेशन है 15.5 करोड़ है एज ऑन टुडे प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन। अब जो 3 to 6 एज जो अर्ली चाइल्ड एजुकेशन का कोहोर्ट है वो उसमें 8.4 करोड़ पॉपुलेशन है। 8.4 करोड़ की पॉपुलेशन में आप देखेंगे 3.68 जो लास्ट बार है, 44% पॉपुलेशन बच्चों की ऐसी है जो कभी आंगनवाड़ी जाते ही नहीं है, प्राइवेट या सरकारी, सीधे क्लास 1 में आ गया यार। ही हैज़ नेवर सीन इवन प्ले बेस्ड, उसने स्ट्रक्चर देखा ही नहीं यार, 44% बच्चे। एंड द अदर कोहोर्ट 1 to 3 7 करोड़ बच्चे हैं, अगर आप इसमें देखें तो 0.24। तो व्हाट हैपन्स, हम लोग क्लास 1 के लिए एवरीबडी मस्ट हैव सीन रिमेंबर्ड कि स्कूल चलो अभियान 20 जुलाई हर आदमी लगता है, इनके लिए कभी नहीं लगे हम लोग। और एंड यू नो 0 to 6 एज ग्रुप वो फाउंडेशन है, अगर उसमें हमने बच्चे को ठीक से पढ़ा दिया तो इट विल बी ईजी फॉर हिम टू पिक अप इन द फ्यूचर। नाउ NEP सेज इंक्लूजन, चाइल्ड को इंक्लूड करना है सिस्टम में। अब सिनारियो क्या है? 2015-16 में 25 लाख बच्चे ऐसे थे, 25 लाख जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड आइडेंटिफाई थे। कम 2020-21 ये घट के 21 लाख रह गई। आइडियली इन ए सोसाइटी 2.5%, अगर पॉपुलेशन का 2.5% CWSN होता है, CWSN दिव्यांग होते हैं, तो इस एज कोहोर्ट में भी ये होना चाहिए, बट दिस इज ओनली 0.9%। कारण क्या है कि हम इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। देयर आर चिल्ड्रन इन द स्कूल इन द क्लास बट वी आर नॉट आइडेंटिफाई। आई विल कम, दिक्कत कहाँ है, होना कैसे है। और अगेन देयर आर स्टेट्स जहाँ पर पिछले समय में पुडुचेरी जो नंबर थी वो भी आइडेंटिफिकेशन 56% डाउन हो गया, लद्दाख 30% डाउन हो गया, हिमाचल प्रदेश 26% डाउन हो गया। मतलब इस 21 लाख में भी द नंबर शुड हैव बीन मोर देन 1 करोड़, इसमें भी 50% डाउन है। एंड व्हाट आर द फ्यूचर ट्रेंड्स? फ्यूचर 0 to 19 ईयर की पॉपुलेशन जो स्कूल गोइंग पॉपुलेशन है डिक्लाइन करेगी।
2011 में इस एज में एक 41% पॉपुलेशन है, घट के 25% रह जाएगी। स्कूल गोइंग पॉपुलेशन लगभग 18%। सो द फर्स्ट स्लाइड विच आई वाज ट्राइंग टू शो कि स्कूल गोइंग स्कूल पर कैपिटा पॉपुलेशन हर स्टेट्स में राइज कर जाएगी, ज़रूरत नहीं होगी उतने की। सो व्हाट मेजर कंट्रीज आर डूइंग, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, दीज कंट्रीज they are going for consolidation of schools, no more much more schools. एंड जो IPCC क्लाइमेट चेंज पैनल कहता है कि स्कूल्स जो होंगे वो आपको रिट्रोफिट करने होंगे, आप रिट्रोफिट करने इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन स्कूल होने होंगे, एनर्जी एफिशिएंट स्कूल्स होने होंगे। तो अब डायरेक्शन ये होगी। NEP कहता क्या है फॉर क्वालिटी ऑफ स्कूल, इसके बेंचमार्क पैरामीटर्स क्या है? इट सेज कि बाय 2030 द चिल्ड्रन कमिंग टू क्लास 1 शुड बी स्कूल रेडी। स्कूल रेडी मीन्स कि उसको नेसेसरीली उसको अर्ली चाइल्ड, आंगनवाड़ी, वो एजुकेशन उसको मिलनी ही होगी। दिस इज मैंडेट। बाय 2030 ड्रॉप आउट जीरो होगा, कोई बच्चा आउट ऑफ स्कूल नहीं होगा। दिस इज एंजॉइंग अपॉन अस। इससे हर स्टेट को एक स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड सेटिंग अथॉरिटी बनानी होगी। व्हाट इज दैट? यू नो, देयर इज एवरी सिटीजन हैज राइट टू नो कि अगर उसका बच्चा किसी स्कूल में जा रहा है तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड्स क्या हैं, टीचर्स के एजुकेशन स्टैंडर्ड्स क्या हैं। तो हर स्टेट को एक अथॉरिटी बनानी होगी और स्टैंडर्ड पैरामीटर्स डिक्लेयर करने होंगे और हर स्कूल को इसको अडॉप्ट करना होगा और उसको पब्लिक फोरम में उसको डिस्क्लोज करना होगा, सो दैट एवरीबडी हैज़ द राइट टू नो कि मैं वहाँ अगर बच्चे को भेज रहा हूँ, इतनी फीस दे रहा हूँ, इज इट वर्थ इट? देन इट सेज about the inclusion of children with disabilities. It says medium of instruction up to grade 5 has to be mother tongue, has to be जो उसकी लोकल वर्ना कलर है। It says कि जो किताबें होंगी टीचिंग लर्निंग मटेरियल इट हैज़ टू बी बाइलिंगुअल। यू नो, राज्यों ने, आई एम मेंशनिंग सम ऑफ द स्टेट्स, दे हैव डन वंडरफुल जॉब। बिहार क्या करता है? बिहार प्रवेश उत्सव मनाता है। सो व्हाट इट डज, सेइंग स्कूल चलो अभियान, सो दे डू लॉट्स ऑफ नुक्कड़ नाटक एंड ऑल दैट। देन दे इन्वॉल्व देयर विलेज समिति और बच्चों को स्कूल में लाते हैं। J&K क्या करता है? J&K बिकॉज नोमैडिक ट्राइब्स बहुत हैं तो वो अपने कम्युनिटीज़ एंड काउंसलर्स को इन्वॉल्व करके देन दे मेन स्ट्रीम द किड्स। लद्दाख बिकॉज इट्स वेरी स्पेशली पॉपुलेटेड, सो व्हाट दे डू, I mean, Secretary Ladakh is over here. I would, at the end of my presentation, I would request him to speak for a minute for this. वो क्या कर, उन्होंने क्या किया है, इन स्कूल्स को, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ में कन्वर्ट कर दिया है। गुजरात, अगेन आई एम सीइंग विनोद ओवर हियर, गुजरात ने विद्या समीक्षा केंद्र बनाया है, इन डिटेल अबाउट इट। उससे अटेंडेंस मॉनिटर करता है टीचर्स की और बच्चों की। कर्नाटक ने एक बहुत, जैसे गुजरात ने समीक्षा केंद्र बनाया है, Karnataka does a wonderful job. If anybody has opportunity, see Gujarat and Karnataka. They track every child. उड़ीसा ने क्या किया है? माई स्कूल। सो व्हाट दे से कि एलुमनाई और एल्मा मेटर को बहुत गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए दे रिक्वेस्ट देम, दे कॉल देम, उनसे इंफ्रास्ट्रक्चरली या अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चरली उसको सपोर्ट नहीं करना चाहता है, अपनी नॉलेज के थ्रू कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हैं, अपने एलुमनाइज को इन्वॉल्व करते हैं। उत्तर प्रदेश ने क्या किया? दे डेड ऑपरेशन कायाकल्प। ऑपरेशन कायाकल्प में व्हाट दे डिड, दे आइडेंटिफाइड कि अगर बच्चों को स्कूल बुलाना है तो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ टू बी गुड, बट उसके लिए रिसोर्सेज क्या आएंगे? सो दे आइडेंटिफाइड 18 पैरामीटर्स, अगर स्कूल में फिजिकली इंप्रूव कर दिए जाएँ देन द विल बी अट्रैक्टिव फॉर द किड्स। सो दे कन्वर्ट द मनी फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट, मनरेगा, lots of department, and they plowed the money in, and they improved 60,000 schools in a span of 2 years. Similarly, Andhra Pradesh does Nadu Nadi, same Nadu Nadi, it's a 3-year program. First year they improved around 15,000 schools at the cost of 4,000 crore rupees. Second year they are going to around 60,000 schools with much more sum of money. Every states, lots of states, I'm mentioning few of these states. लद्दाख ने
लद्दाख की फिल्म मैं दिखा दूंगा व्हेन टाइम परमिट्स. So, अब because you guys are sitting over here, I take this opportunity कि करना क्या होगा. जनरली जो हम लोग ड्रॉप आउट या रिटेंशन होता है या इसको मेजर करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में मेजर करते हैं इतने बच्चे ड्रॉप हो जाए. आई मीन लास्ट 2 years ऑल्सो वी आर सीइंग इट इन द एजुकेशन सिस्टम, इतने बच्चे डिस्ट्रिक्ट में ड्रॉप आउट हो गए. इससे बिल्कुल काम नहीं चलेगा. ड्रॉप आउट हैज़ टू मेजर द स्कूल लेवल. स्कूल पर क्लास 1 में 21-22 में इतने बच्चे थे, से 70 किड्स, क्लास 2 में पहुँचे तो 60 रह गए, 10 गए कहाँ. सो इट्स द एक्सरसाइज स्कूल लेवल पे होनी होगी, नॉट